گلگت بلتستان میں فروغ تعلیم اور معیار تعلیم کے لیے اپنی مدد آپ خدمات سر انجام دینے والے تعلیمی ادارے 8 ماہ بعد تو کھل گئے، مگر گزشتہ دور حکومت میں والدین کی طرف سے بچوں کی فیس کی ادائیگی سے متعلق دیے گئے بیانات اور اعلانات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ نجی تعلیمی اداروں کو وعدے پورے کرنے کا مطالبہ۔ ضلع دھیامیر گلگت بلتستان کا اہم علاقہ، مگر مسائل سے دوچار۔ بجلی، پانی، صحت کا نظام مؤثر نہ ہونے سے علاقہ مکین پریشان۔ دھیامیر میں لڑکیوں کی تعلیم کا بھی کوئی مناسب بندوبست ہی نہیں، سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ہر سال کی طرح سیاسی جماعتوں کے وعدے فقط وعدوں تک ہی محدود۔ اور سب ڈویژن جھوربٹ کے سرحدی علاقے تھوگموس میں موجود یوٹیلٹی سٹور کو حکومت کی طرف سے تالا لگا دیا گیا۔ یوٹیلٹی سٹورز بند ہونے سے شہریوں کو اشیاء خرد و نوش کی خریداری میں شدید مشکلات کا سامنا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے مگر ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خیر خبر گلگت بلتستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خبروں کی تفصیلات کا سلسلہ جاری کرتے چلیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں فروغ تعلیم اور معیار تعلیم کے لیے اپنی مدد آپ خدمات سر انجام دینے والے تعلیمی ادارے 8 ماہ بعد کھل تو گئے، مگر گزشتہ دور حکومت میں والدین کی طرف سے بچوں کی فیس کی ادائیگی کے متعلق دیے گئے بیانات اور اعلانات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس ضمن میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ذمہ داران نے K2 ٹیلی ویژن کے پروگرام احوال گلگت بلتستان میں درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا، پورے پاکستان میں صوبائی گورنمنٹ حکومتوں نے اعلان کیا تھا 20% کم کر کے فیس لے لیں، لیکن جی بی کی گورنمنٹ نے والدین کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ پرائیویٹ سکولوں کو فیس نہ دے دیں، گورنمنٹ دے گی۔ موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ سابقہ گورنمنٹ کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور ہمارے لیے اور ہمارے جو والدین ہیں ان کے لیے اور سکولوں کے جو مشکلات ہیں، اور خاص طور پر ہم پرائیویٹ سیکٹر کے جو کام کرنے والے ٹیچرز ہیں ان کی مشکلات کو سامنے رکھتے کوئی ہمیں قابل قبول کوئی فیصلہ کرے ہمارے لیے۔ سابقہ گورنمنٹ نے جو پرائیویٹ سکولوں کی ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے جو ایک بل لے کے آئے تھے، اس میں جو رکاوٹیں تھیں وہ الحمدللہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی ایسوسیشن کے ساتھ مل کے وہ بھی الحمدللہ اب حل ہو چکا ہے، اور اسمبلی سے بل بھی پاس ہوا ہے اور ایک بھی نافذ ہے۔ اب گورنمنٹ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹاپ پرائرٹی میں ہمارے اس مسئلے کو رکھ کے ہماری مدد کی جائے۔ اس پینیڈیمک میں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ایجوکیشن کے ٹیچرز ہیں اور بچے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان ہمارا تعلیمی لحاظ سے ہمارے بچوں کا ہو رہا ہے۔ جو ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پینڈیمک کے دوران بہت متاثر رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر کوئی انڈسٹری نہیں ہے، اور یہی جو ادارے ہیں جنہوں نے بے روزگاری کو کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اور اس وقت گلگت بلتستان کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ یہاں پہ جو پریویس گورنمنٹ کے کچھ ذمہ دار تھے، منسٹرز تھے، ان لوگوں نے مبہم بیانات دے کے پرائیویٹ سیکٹر جو گلگت بلتستان میں کام کر رہا تھا اس کو مزید مشکلات میں ڈال دیا، کیونکہ فیڈرل لیول پہ کوئی بھی گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا تھا پرائیویٹ سیکٹر کے لیے پیکیج کے حوالے سے، لیکن یہاں چند وزراء نے اعلانات کر کے کہا کہ یا ہم والدین یا ہم بچوں کی فیس ہم دیں گے، کسی منسٹر نے کہا کہ ہم تنخواہ دیں گے۔ جی بی کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بہت ہی مشکلات کا شکار ہے، اور اس وقت تقریباً کوئی 20-25 کے قریب جو پرائیویٹ سکول ہے وہ کلوز ہو گئے ہیں۔ والدین فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم پیکیج دیں گے۔ تاحال اب تک کوئی بھی یہاں پہ پیکیج کا اعلان امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم
गुजारिश करते हैं कि यहाँ के ज़िम्मेदार इदारों से कि प्राइवेट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर की जो हालत है उसको देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के लिए एक बेहतर पाकिस्तानी शहरी बनाने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है। तो हम कोरोना वायरस के पेश नज़र जहां मुल्क भर में दीगर सरगर्मियां मुतासर हुई, तो वहां तालीमी मैदान में पढ़ने वाले बच्चे भी काफ़ी हद तक मुतासर हुए। गिलगित बल्तिस्तान से अहवाले बल्तिस्तान प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू की गई थी वो आपने सुनी। अब मज़ीद गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपको बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान को अंदरून और बैरून मुल्क में बेहतर तरीके से उजागर करने पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने खुशगवार हैरत का इजहार करते हुए K2 टेलीविज़न की मैनेजमेंट और ख़ुसूसी तौर पर CEO के किरदार को लायक तहसीन और तकलीद करार दिया है। साबिक स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली हाजी फ़िदा मोहम्मद नाशाद और मारूफ कानूनदान और साबिक वज़ीर कानून औरंगज़ेब एडवोकेट का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मैं K2 टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने मुसलसल एक अशरे गुज़श्ता एक अशरे में इन्होंने जिस कदर ज़राए अबलाग के हवाले से इस इलाक़े के तरक़ियाती मामलात में, इस इलाक़े के सियासी मामलात में, इस इलाक़े के जो समाजी मामलात हैं, यहाँ के रस्म व रिवाज हैं, यहाँ के अदब व सक़ाफ़त है, इनको उजागर करने में बहुत भरपूर किरदार अदा किया है। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इस इलाक़े में इस इलाक़े का अपना कोई टीवी चैनल नहीं था, लेकिन अब ये K2 चैनल ने उसकी जगह ले ली है और अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस K2 चैनल को अपना ही चैनल समझते हैं और इन्होंने भी इसके मुख्तलिफ इस इलाक़े के जोग्राफियाई लिहाज से, तारीख़ी लिहाज से, सक़ाफ़ती लिहाज से, अदबी लिहाज से किसी शोबे को भी इन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया है। और ख़ुसूसन ये जो मॉर्निंग शो का प्रोग्राम है, अब ये कोरोना के हवाले से आपने जो प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, इनमें से एक जो है काबिल तहसीन है और मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ख़ुद एक मेंबर हूँ, मैं गुज़श्ता 35 सालों से इस फील्ड में हूँ। अल्लाह का फजल करम है, आप लोग बेहतर काम कर रहे हैं। मैं K2 टीवी के पूरी टीम को और आपके जो कारकुनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं तवक्को रखता हूँ कि जिस दिलचस्पी के साथ, जिस कोशिश के साथ और जिस मेहनत के साथ आपने गुज़श्ता 10 सालों में खिदमत अंजाम दी है, मुझे तवक्को है कि आने वाले दिनों में उससे बेहतर खिदमत अंजाम देंगे। शुक्रिया ईसा अलीम साहब आपका, आपके चैनल का, और एक बार फिर आपका चैनल जो है गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स की, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, इसकी शफाफियत के हवाले से अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल जी, अगली खबर से मुतालिक आपको बताते चलें कि कराकोरम पर वाक़ई ज़िला द्यामिर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ा हुआ गिलगित बल्तिस्तान का पहला ज़िला है। ज़िला द्यामिर का सदर मुकाम चिल्लास है। ज़िला द्यामिर तारीख़ी और सियासी लिहाज से बहुत अहम जाना जाता है। मज़ीद आपको इसी हवाले से बताते चलें कि द्यामिर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 4 हलकों पर मुश्तमिल है, जिनमें हल्का 15, 16, 17 और 18 शामिल है। सियासी एतबार से अहम इलाका समझा जाने वाला ज़िला द्यामिर अभी तक महरूमियों का शिकार है। यहाँ सियासी जमातें इलेक्शन तो अवामी वोट लेकर जीत जाती हैं, मगर यहाँ की आवाम के मसाइल वैसे ही बरकरार हैं। इस इलाके में बिजली और पानी की बात की जाए तो ये इलाका लोड शेडिंग में डूबा रहता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ज़िला द्यामिर भी शदीद मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से द्यामिर में पानी की ज़मीनी सतह और चश्मों की रवानी को मुतासिर किया है। बारिशों का पानी हर साल ज़ाया हो जाता है या फिर सैलाब की सूरत में आबादियों को तबाह करता गुजर जाता है, मगर इस इलाके में पानी को महफूज करने का कोई बड़ा मंसूबा नहीं सामने आ सका। ताहम द्यामिर भाषा डैम से मुतल्लिक तवक्को की जा रही है कि इस इलाके में पानी और बिजली के मसाइल का खात्मा हो सकता है। अगर बात की जाए तालीम के मसाइल के हवाले से तो द्यामिर में तालीम के मसाइल भी कोई कम नहीं। बिलखसूस इस इलाके में लड़कियों की तालीम के हवाले से बहुत शदीद मुश्किलात हैं। स्कूल्स हों तो एजुकेशन का तमाम निज़ाम मुतासिर है। बिलखसूस इस ज़िले में लड़कियों की तालीम से मुतल्लिक काफ़ी दुश्वारी का सामना है। लड़कियों के स्कूल्स या तो हैं
یا تو نہیں۔ اسکول میں موجود ٹیچر بھی نہیں ہیں اور نہ ہی سہولیات ہیں۔ دیامیر کے ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد علاقوں کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یہ علاقہ سیاحتی مقامات کے لحاظ سے بھی اپنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیامیر سے ہی بہت سے سیاحتی مقامات کا راستہ گزر جاتا ہے، مگر قابل افسوس بات یہ ہے کہ دیامیر میں اب کوئی خاص بات نہیں رہی۔ سب ڈویژن جھوربٹ کے سرحدی علاقہ تھوگموس میں موجود یوٹیلٹی سٹورز کو حکومت کی جانب سے تالا لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو اشیاء خورد و نوش خریدنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے خان شمالی سے، جو کہ ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں۔ جی خان شمالی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کہ یہ کیا معاملات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سب ڈویژن جھوربٹ کے خوبصورت ترین وادی تھوگمس میں۔ یہاں وادی تھوگمس میں ایک یوٹیلیٹی سٹور ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اب اس کو بھی تالا لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے مکینوں کو اور خصوصاً سب ڈویژن جھوربٹ کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مائیگین جھوربٹ کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کہ یوٹیلیٹی سٹور کو تالا لگانے سے براہ راست متاثر ہوا ہے۔ ہم ابھی ان سے جانتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور کو حکومت پاکستان کی طرف سے تالا لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جی آپ بتائیے گا کہ یوٹیلیٹی سٹور کی بندش سے وادی تھوگمس کے اور سب ڈویژن جھوربٹ کے مائیگین کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے آپ لوگوں میڈیا والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا لگ بھگ 1 سال سے اوپر ہو گیا یہ یوٹیلیٹی سٹور بند ہو کے، تو ہمیں عوام کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ جو باقی دکانوں سے جب چیزیں لیتے ہیں تو بہت ہمیں مہنگا ہے، ایک تو ہپولو سے بھی زیادہ مہنگے چیزیں آتے ہیں، اسکردو سے آتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور ہونے سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا، ہر چیز کافی سہولیت ہوتا تھا، تو ابھی ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ہم عوام سے، حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں جی یہ یوٹیلیٹی سٹور دوبارہ کھولا جائیں تاکہ ہم غریب عوام کے لیے کچھ سہولیت۔ اس حوالے سے آپ کی کسی یوٹیلیٹی سٹور آف پاکستان کے کسی عہدیدار سے یا انتظامیہ کے کسی افسران سے بات ہوئی تھی؟ جی ہم نے کافی دفعہ درخواست دیا تھا لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے جی، بس اپنے منمانی کر رہے اور ہمیں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جی بالکل، مائیگین جھوربٹ کے مطابق یوٹیلیٹی سٹور کی بندش سے انہیں اشیاء خوردنوش کی خریداری میں بہت مشکلات کا سامنا ہے، اور مائیگین کا کہنا ہے کہ دکاندار ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ اور بہت بہت شکریہ خان شمالی، ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خیر خبر گلگت بلتستان میں جہاں ہم آپ کو سیاسی اور عوامی مسائل پر خبر دیتے ہیں، وہیں اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان جو کہ سیاحتی مقامات میں اپنی ایک مثال رکھتا ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ یہاں پر موجود پہاڑ ہیں۔ خیر خبر گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان کے خوبصورت علاقے اسکردو کی سیر بھی کرائیں گے، تو چلیے دیکھتے ہیں اس مقام میں کہ یہاں پر کس قسم کے خوبصورت نظارے ہیں، آئیے دکھاتے ہیں۔ رخ کرتے ہیں فوکس ٹوڈے کی جانب۔
फोकस टुडे में आज गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने को हैं। उम्मीदवार वोटर्स के दिल जीत लेने के लिए सरगर्म हैं। जानते हैं कि वोटर्स किन बुनियादों और वादों पर वोट डालेंगे। ब्यूरो चीफ गिलगित बल्तिस्तान ईसा हलीम हमें अवामी आराई से आगाह करेंगे। जी ईसा हलीम, आगाह कीजिएगा। फोकस टुडे के साथ आज हम गिलगित बल्तिस्तान का सूबाई हेड क्वार्टर गिलगित में हम मौजूद हैं और गिलगित की जब हम बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला से गिलगित में लोग यहाँ आबाद हैं, लेकिन इलेक्शन के दिनों में बहुत सारे वोटर जो है गिलगित शहर से अपने अपने अजला की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, चले जाते हैं, ताकि वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट कर सकें, उनको वोट दे सकें। तो मैं इस वक्त गिलगित में मौजूद हूँ और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ उम्मीदवारों के सपोर्टर्स और वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किन को सपोर्ट कर रहे हैं, किन को वोट दे रहे हैं और उसकी वजह क्या है। यकीनन आज़ाद उम्मीदवारों की भी बहुत बड़ी तादाद इलेक्शन लड़ रही है और मुख्तलिफ सियासी और दीनी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले जमातों के बहुत सारे उम्मीदवार भी मैदान में इस वक्त कूद पड़े हैं और तमाम जो उम्मीदवार हैं वो इंतखाबी इस जोश और जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ गाँवों में, तहसीलों में और मुख्तलिफ घरों तक के उम्मीदवार जो है वो पहुँच रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट को वो खड़ा कर सकें। और यकीनन इस मुकाबले में जहाँ उम्मीदवार अपनी कारकर्दगी को बढ़ा और घटा रहे हैं, वहाँ पर वोटर्स भी जो है वो अपनी बेहतरीन चॉइस का इंतखाब करते हुए अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे साथ दोस्त यहाँ मौजूद हैं वो किन को सपोर्ट कर रहे हैं, किन को वोट दे रहे हैं और उसकी क्या वजूहात हैं। तो जी आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं जीबी। यहाँ पे तमाम सियासी पार्टियाँ, मजहबी पार्टियाँ के लोग यहाँ पे अपने जो है ना कैंडिडेट सामने आ रहे हैं और अभी मैदान सज गया है और जो है ना इलेक्शन अनकरीब है। इसमें जो है ना लोगों की आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत ज़्यादा हैं और सियासी पार्टियाँ को भी जो है ना उम्मीदवार यहाँ पे हैं। हम ये चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में सियासी पार्टियाँ आगे आ जाए और यहाँ पे सियासी जो है ना लोग जो है ना शऊर रखें। हम मजहबी पार्टियों की फेवर में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये इलाका जो है ना पुरअमन हो जाए, यहाँ पे पुरअमन माहौल हो, अमन हो, भाईचारगी हो, यहाँ पे जो है ना लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। तो इससे पहले जो है ना हमारी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, अल्लाह पाक का शुक्र है यहाँ पे अमन हुआ, यहाँ पे खुशहाली आई। आप किसको वोट देंगे और उसकी क्या वजूहत? वोट तो हम जाहिर बात है हम जो है ना पार्टी मुस्लिम लीग नून से मैं ज़िले का ज़िम्मेदार हूँ। पार्टी के अंदर नाराज़गियाँ भी होती हैं, इख्तलाफ भी होता है, लेकिन वोट तो जो है ना वो हमारा अपना जो है नज़रिया, हमारा जो बचपन से 28 साल से इस पार्टी के लिए हमने काम किया, हमने जान लगाया, हमने माल लगाया, हमने वक्त लगाया। तो पार्टी वोट तो हमारे शहर को भी जो है ना शहर को ही हम वोट दे देंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। आप क्या समझते हैं कि आपके हलके में कौन कौन सी जमातें आपके साथ मुकाबला कर रही हैं? हमारे हलके में तो अभी तक तो जो है ना वो PTI है और पीपल पार्टी है और दूसरा ये सियासी पार्टियों में ये नज़र आ रही हैं और दूसरा जमात इस्लामी भी जो है ना वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। हमारे जो हबीब भाई हैं मेरे हलके के ही हैं, हमारे भाई हैं। तो ये इस तरह जो है ना मुकाबले में ये नज़र आ रही हैं अभी तक। आपका वोट किस हलके में? मेरा तांगीर में है। आपके वहाँ क्या सूरत हाल है, कौन कौन मुकाबले में? तो उधर एक तो आज़ाद उम्मीदवार मुकाबले में और दूसरा ये पिटाई जो है, पिटाई है हाजी गुलबर साहब। तो हम आपका वोट, आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं तो गुलबर हाजी को दे रहा हूँ, पिटाई के साथ हूँ मैं। और इंशाल्लाह अभी इसी साल इंशाल्लाह पिटाई आएगी तांगीर में। और बाकी मैं इधर ये कहता हूँ कि मज़हब अपना अपना होता है, मज़हब छोड़ो, बाकी आप अपना मुफाद देख के वोट देना है। वो पीपल पार्टी का भी है, PTI का भी है। तो आप किसको वोट देंगे? मैं PTI को देता हूँ। तो आप क्या समझते हैं, वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो गिलगित बल्तिस्तान में भी इनकी हुकूमत बननी चाहिए, आपका ये ख्याल है? बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में जो हुकूमत आएगा हम उनके साथ ताउन करना है। आप ये समझते हैं कि यहाँ कोई किसी और जमात की हुकूमत आई तो वो और वफाक के दरमियान कोई ज़हनी हम आहंगी नहीं होगी? नहीं होगा, बिल्कुल ठीक ठाक। तो इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वफाक में, तो आप उनसे मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है। तो आप यहाँ पर भी PTI चाहते हैं? बिल्कुल सर। आपका नाम? मेरा नाम बुली जान। अच्छा, तो आपका उम्मीदवार का नाम? जानजेब। जानजेब, बिल्कुल सर। जी, ये शहरी का कहना है कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होनी चाहिए, तो इनका ये मानना है। तो इस तरह हम कुछ और दोस्त यहाँ मौजूद हैं तो इनसे भी पूछते हैं। जी, आपका वोट है? जी।
किस हल्के में? दारेल का। दारेल में आप कौन कौन से उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं? JY भी है, PTI भी है, पीपल पार्टी भी है, और इन दोनों का JY और PTI का मुकाबला है अभी उधर दारेल में, और तीसरे में उधर वो पीपल पार्टी भी है। आपका वोट किसको है? अब मेरा वोट JY का है। JY का है? जी सर। तो आप JY को क्यों पसंद करते हैं? बस हमने पहले भी 3 साल उसको दिया, अभी भी उनको देते हैं वोट। अच्छा, आपका उम्मीदवार का नाम? रहमत खालिक है जी। हाजी रहमत खालिक जी। जो साबिक मेंबर कानून साज असेंबली भी रहे हैं। आपका वोट कहाँ पे है? द्यामर में, चिलास। चिलास की जगह में किस हल्के में? चिलास हल्का 2। वहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं? अनवर अतीकुल्ला अताउल्लाह। आपका वोट किसको जा रहा है? अताउल्लाह। उसकी वजह? वजह बस हमारा लीडर है वो। अच्छा, पहले से आपका लीडर? जी जी नाज़रीन, ये मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं, उम्मीदवार हैं, उनके जो वोटर्स और सपोर्टर यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मंजूर आलम। आप किस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं? अस्तोर हल्का नंबर 1 से। अच्छा, वहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार इस वक्त कंपटीशन पे नज़र आ रहे हैं? खालिद खुर्शीद है, अब्दुल हमीद खान है, अच्छा फरमान अली राना। आपका वोट किसको जा रहा है? PTI खालिद खुर्शीद को। उसकी क्या वजह हो सकती है? जब से हमने PTI के साथ ताउन किया, उसके बाद भी खालिद खुर्शीद ने हमारे साथ हर वक्त ताउन किया है, हमारे साथ हर वक्त कॉपरेट किया हुआ है, हमारी हर मुश्किल में खालिद खुर्शीद ने हमारा साथ दिया हुआ है। इसी वजह से जी यकीनन जो उम्मीदवार किसी वोटर के सपोर्टर के मुश्किल में काम आते हैं, तो वोटर सपोर्टर का ताउन भी उनके साथ हमेशा रहता है। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। आपका हल्का? मैं गजर से हूँ सर। गजर कौन सा हल्का? हल्का 2। वहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार इस वक्त लड़ रहे हैं? वहाँ पे नज़ीर एडवोकेट है और शर्म खेल साहब है। आपका वोट किसको जा रहा है? मेरा वोट इंशाल्लाह PMLN को जाएगा। अभी उसका टिकट का कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक PMLN का। आप नजरियाती कारकुन? नजरियाती कारकुन हूँ जी। हमारे साथ ज़िला अस्तोर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के जो मुख्तलिफ सियासी और इंतज़ामी मामलात हैं, उन पर गहरी नज़र है। मेरी मुराद तारिक हुसैन है। जी तारिक हुसैन, आप ओवरऑल इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और अस्तोर में जो सियासी गहमागमी है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी सर साहब, इस वक्त गहमा गहमी तो काफ़ी तेज़ है, और अगर आप गिलगित और अस्तोर की अगर बात करें तो गिलगित हल्का 1 और हल्का 2 में इस वक्त 37 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, जिनमें मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार भी हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। इसी तरह अगर आप अस्तोर की बात करें तो अस्तोर हल्का 1 जो है मेरे ख्याल में पूरे GB में 49 उम्मीदवारों के साथ सर फहरिस्त है और पहले नंबर पर है। गहमा गहमी ज़्यादा है। ज़्यादातर अस्तोर की जो दर्जा हरारत है ख़ासकर हल्का 1 की, वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और यहाँ गिलगित पे भी यही सूरत हाल है। हल्का 2 और 1 में हम ज़्यादातर सरगर्मियाँ देख रहे हैं, और उम्मीदवारों की तादाद भी यहाँ ज़्यादा है, सरगर्मियाँ भी ज़्यादा हैं और एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उनके कारकुन भी पार्टियों के, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके कारकुन, उनके चाहने वाले, उनके रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई देते हैं। तो यहाँ का जो इलेक्शन है इस दफ़ा इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जाता है। इसकी अहम वजह यह है कि इस वक्त सूबे के मामलात भी चल रहे हैं, बातें चल रही है सूबाई सेटअप देने के हवाले से, फिर भारत की साजिशें भी आपके सामने हैं। उस हवाले से भी अगर देखा जाए CPEC का मामला है, उस हवाले से भी गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन है, इलेक्शन 2020, वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान जो हुकूमत है और मुख्तलिफ हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी कोशिश है कि बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद को यकीनी बनाया जाए, और इसके साथ साथ पुरअमन, शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं और सिक्योरिटी इंतजाम भी कर रहे हैं, और SOP कोरोना के हवाले से अब तक जो है वो जारी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा से खदशा लग रहा है कि कहीं कोरोना की लहर है वो दोबारा से जो है वो हमलावर ना हो जाए। इस हवाले से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द SOP जो है वो जारी करना चाहिए, और ज़ाब्ता इखलाक जो है वो भी इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जल्द जारी होना चाहिए, ताकि मज़ीद जो इलेक्शन की शफाफियत है और गैर जानबदाराना जो इलेक्शन का इनेकाद है उसको यकीनी बनाया जा सके। बाकी अवाम से हम गुजारिश करेंगे कि ज़ात पात को या मज़हब को या इलाकायत को ना देखें,
بلکہ لیڈر کی صلاحیت کو دیکھیں، اس کے خلوص کو دیکھیں، اس کی حب الوطنی کو دیکھیں، اس کے جذبہ خدمت کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے ممبران کا انتخاب کریں، تاکہ وہ اسمبلی جا کر حقیقی معنوں میں جو ہے نہ صرف آپ کے حقوق کی ترجمانی کر سکے بلکہ آپ کے حقوق کے تحفظ کو بھی۔ بہت بہت شکریہ عیسیٰ حلیم، ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مزید گلگت بلتستان سے متعلق تمام خبریں جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.ahwalgb.com۔ خیر خبر گلگت بلتستان سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ مجھے ملک دانش علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔